اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear student and dear listener. I hope that you are fine. In this video we discuss about next tenses form past tense, and in this video we discuss about past perfect continuous tense, جسے ہم اردو میں فعل ماضی مکمل جاری کہتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ایجوکیشنل ویڈیوز باوقت ملتی رہے. چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو. میں آپ کا ٹیچر محمد وسیم توفیق. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج سب سے پہلے ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں تعریف کہ کیا ہوتا ہے. ماضی میں وقت سے پہلے اگر کوئی کام ہوتا رہا ہو تو اس کو فعل ماضی مکمل جاری سے ظاہر کیا جاتا ہے. ماضی میں وقت سے پہلے اگر کوئی کام ہوتا رہا ہو تو اس کو فعل ماضی مکمل جاری سے ظاہر کیا جاتا ہے. نیکسٹ اب ہم اس کی سیکھ لیتے ہیں کچھ ایگزامپلیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کسی بھی اردو کے فقرے کے آخر میں اگر یہ الفاظ آ جائیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک جملہ فعل ماضی مکمل جاری کا جملہ ہے. کون کون سے ورڈ ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل اگر کسی بھی جملے میں تا رہا تھا، تھی رہی تھی، تے رہے تھے وغیرہ وغیرہ آ جائے تو اسے ہم کہیں گے یہ ایک فعل ماضی مکمل جاری کا جملہ ہے. کلیئر؟ اب ہم اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. مثلا وہ گانا گاتا رہا تھا، وہ گانا گاتا رہا تھا. اس کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا رہا تھا آ گیا ہے، یعنی کہ تا رہا تھا آ گیا ہے تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ ایک فعل ماضی جاری مکمل کا جملہ ہے. اب اس کی ایک اور ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے کل صبح جب میں علی سے ملا تو وہ 2 گھنٹے سے میرا انتظار کر رہا تھا. اب ہم نے دیکھا اس کے لاسٹ میں بھی رہا تھا آ گیا تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ جملہ فعل ماضی مکمل جاری کا جملہ ہے. نیکسٹ اب ہم نے کچھ اس ٹینس میں کچھ بیسک چیزیں یاد رکھنی ہیں اور انہی چیزوں کا بار بار اس ٹینس میں استعمال ہوگا. دیکھ لیتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں. جیسے یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے، دوسرے ٹیبل میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے اور لاسٹ ٹیبل میں آپ کو ورب نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے ورب نہیں سیکھے کہ کیا ہوتے ہیں ورب تو اس کا لنک میں اب اوپر آئی بٹن میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، وہاں پر جا کر آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اگر سبجیکٹ میں آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں یا پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، اگر یہ آ جائے سبجیکٹ میں تو ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیڈ بین کا استعمال ہوگا. ہیڈ بین کا استعمال ہوگا اور ورب اس کے ساتھ جو استعمال ہوگی وہ ہوگی
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ हमने ing का इजाफा करना है। याद रह जाएंगी ये चीज़ें, आपने मस्ट याद रखनी है क्योंकि यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, यही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे हाउ वी मेक आ सेंटेंसेस, कि कैसे हम फेल माजी मुकम्मल जारी का एक जुमला बना सकते हैं। आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, जिसे हम सादा जुमले भी कहते हैं। अगर इस तरह के टेंसेस आ जाएं तो हमने क्या करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। जैसे पहले टेबल्स में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, सेकंड टेबल में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, और लास्ट टेबल में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का यूज़ नज़र आएगा। आइए देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट में वही चीज़ें हों जैसे मैंने अभी आपको रिमेंबर में बताया है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इस्म कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इस्म कहते हैं। अगर ये सब्जेक्ट में हो तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल होगा। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने WORK वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, एंड इसके साथ हमने ing का इस्तेमाल करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम सवालिया जुमले भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स क्रिएट किए हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट टेबल में हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, सेकंड टेबल पर आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, और थर्ड टेबल में आपको बीन नज़र आएगा, और लास्ट में आपको, इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का इस्तेमाल करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास वही चीज़ें आ जाएं, जैसे हैड आ जाए, और सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इस्म कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इस्म कहते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आ जाएं तो हमें पता है हमने हेल्पिंग वर्ब में, जैसे हमने रिमेंबर में सीखा था, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो चीज़ें याद रखनी हैं। बीन के सेक्शन में बीन ही आ जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, जैसे WORK वर्क, एंड लास्ट में ing, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया जुमले हैं, इसलिए इसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम मनफी जुमले कहते हैं, कि इसे हम कैसे बना सकते हैं इस टेंस में मनफी जुमले। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट बीन, एंड लास्ट में आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। अगर सब्जेक्ट में वही चीज़ें हों, जैसे आई हो, वी हो, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इस्म कहते हैं, और प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इस्म कहते हैं, अगर सब्जेक्ट में ये चीज़ें हो तो हेल्पिंग वर्ब हमने वही इस्तेमाल करना है, हैड और नॉट का यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और इसके साथ हमने बीन का इस्तेमाल करना है, और लास्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने WORK वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है, और लास्ट में ing का भी इजाफा करना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, लास्ट फॉर्म ऑफ
सेंटेंसेस की ये लास्ट फॉर्म है, यानी कि सवालिया और मनफी जुमले हम कैसे बना सकते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल जारी में। आइए सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स क्रिएट किए हैं। जैसे फर्स्ट में आपको नज़र आएंगे हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट में आपको सब्जेक्ट, और नेक्स्ट में नॉट बीन, एंड लास्ट में आपको वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। अगर हेल्पिंग वर्ब में वही चीज़ें हों, हैड हो, तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, और नॉट बीन में नॉट बीन आ जाएगा, एंड लास्ट वाले सेक्शन में वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे WORK वर्क एंड ING, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ तक तो हमने सीखा कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, यानी कि हमारे पास कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ब्स, कौन से सब्जेक्ट, कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें कि ये कहाँ कहाँ मोस्टली जगहों पर इस्तेमाल होता है। मंदरजा झैल जगहों पर ये अमूमन इस्तेमाल होता है, जैसे ऐसा काम जो माजी में एक ख़ास वक्त से पहले शुरू हुआ हो और उस ख़ास वक्त तक जारी रहा हो। ऐसा काम जो माजी में एक ख़ास वक्त से पहले शुरू हुआ हो और उस ख़ास वक्त तक जारी रहा हो, तो उसे हम कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज, जब मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया, यानी कि मैं कॉलेज में गया, मिस्टर मकसूद हैड बीन टीचिंग, मिस्टर मकसूद वहाँ पर पढ़ाते थे। देयर फॉर 3 years, 3 सालों से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। यानी कि जब मैंने एक कॉलेज को ज्वाइन किया, वहाँ पर एक मिस्टर मकसूद नामी टीचर था जो कि 3 सालों से वहाँ पढ़ा रहा था। तो इससे भी हम कहेंगे कि ये एक फ़ेल माजी मुकम्मल जारी का सेंटेंस है। So today we complete past perfect continuous tense। I hope कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर किसी ने ये मेरी लेक्चर्स वीडियो या फाइल डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वी मीट इंशाल्लाह in next video. Take care so much and Allah Hafiz.